संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 14 अनुदानों की अनुपूरक मांगे पर चर्चा। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं बिल इंट्रोड्यूस करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी। Thank you very much, sir. We've had discussions on the supplementary demand for grants, and about 33 honorable members have spoken on the subject. While with all humility, I like to admit that most members seem to have spoken largely on the general budget, on which I have already given my reply earlier. But certainly a few members have spoken on specific issues related to the supplementary demand for grants. So initially, I will speak a few words about what exactly is in the supplementary demand for grants, and then respond to each one of the members who have raised the issues. So the second supplementary demand for grants, first of all, let me explain that within a year, up to 3 supplementary demands for grants have been placed on the table of this House for decades. But I'd like to say, under Prime Minister Modi's guidance, we have brought it down to the bare minimum, 1 or 2 and not beyond 2. So because not beyond 2 is a self-imposed kind of a restriction, so that we don't have a habit of bringing in more and more amendments and seeking Parliament's approval, we have made sure that we will minimize it to 2. But not doing even 2 or 1 would mean that we are inflexible, and would also mean that where states are asking for some, or when departments are asking for something which is so essential for them to function, it will look very uncaring and irresponsive of the government. And therefore, I think supplementary budget, which as per the original constitution makers, supplementary demand for grants is a very useful instrument. And where it is necessary, we will have to use it. But bringing that supplementary demand for grants should not be looked at as if some wrong assessments have been made originally in the budgetary estimate time, and therefore we have brought this. So it is done with a lot more open-mindedness and also flexibility which can be offered to the departments. And in that order, this time, we have placed the second supplementary demand for grants. Sir, in this, I seek the approval of the Parliament for expenditure requirements related to 61 grants. This involves gross expenditure of about 2.81 lakh crore through cash or technical or token supplementaries. The present proposal also includes an amount of 902 crore rupees that is being provided for recouping advances of an equivalent amount from the Contingency Fund of India. So, 2.01 lakh crore is the cash supplementary which is being taken under 18 grants, while 0.80 lakh crore is the technical supplementary, and that's being sought for 32 grants, and 59 total supplementary items are being sought from 43 grants. Upfront, I like to say that this 18 plus 32 plus 43 may not add up to 61, which I originally said 61 grants are being placed here, is because some of them repeat or overlap, so the numbers may not add up. With respect, I would want members to be taking this fact into cognizance. Now, first of all here, I also would want to give that point as a reiteration
I wish to reiterate that with all this extra that we are coming up with, technical supplementary, cash supplementary, I do not want any member of the parliament to wonder if I will be able to reach the fiscal deficit number that I have said during placing the budget here. The budget for 26-27 certainly states what's the budget fiscal deficit for the year ending March 31st, 2026 is going to be, and the rest is going to be for the rest. So we are not going to in any way not fulfill the word given in the budget. So I wish to reiterate that the commitment which has been given in this house for the second supplementary inclusive of the second supplementary demand for grants will be within the fiscal deficit presented, the target that has been presented in this parliament on 1st February 2026. Sir, it's important for us to also recognize that we have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. And this I would want to elaborate a bit because 57,381 is fairly a big amount, and therefore I want to explain as to why I have brought that in. The fiscal reforms, particularly the policy initiatives that have been undertaken post-COVID-19, made sure that the economy recovered well. We have strengthened the overall macroeconomic framework. Now, this has enabled us to absorb the shocks, the economic shocks of various nature, without deviating from the fiscal consolidation roadmap. But I want to highlight the point that the proposed Economic Stabilization Fund will provide fiscal headroom to allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with Economic Stabilization Fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर LPG के ऊपर चक्कर चलाओ. ये है हमारी ऑपोजिशन. और दूसरा एक और विषय सर, क्योंकि हमारे सदस्यगण बैठे हैं और आप भी शुक्रवार के दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल भी शुरू होना है उससे पहले मेरे जवाब है, इसीलिए मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाह रही हूँ. इस देश में ऐसे विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है. ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए. जनता को इस देश में आप कृपया अपनी जगह चले जाइए. आप जिस मुद्दा पे बात कर रहे हैं एलपीजी में, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते. उसी बात के बारे में बात आप सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए. वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं, उसी बात पे चर्चा चल रही है, आप सुनना. ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये क्या जिम्मेदारी है आपकी?
आप एलपीजी के नारे लगा रहे हैं, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बैठिएगा प्लीज, आप कृपया आप अपनी जगह पर जाके बैठिए, सुनिए मैडम प्लीज। सो ऐसे परिस्थिति में सरकार के साथ देते हुए जो भी विदेश से जो भी दिक्कत आ रही है, हम सब पार्टी के रूपरेखा से उबर कर ऊपर आकर के देश के हित में साथ रह करके जनता को उम्मीद जताने वाले बात करना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पूरे अपने ताकत लगा करके इस देश में नागरिक को कोई आपत्ति ना हो इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे विपक्ष तो वेल में आकर के चिल्लाना ही उनका एक काम ऐसे समझ कर रह रहे हैं। देश का दुर्गत पोजीशन दुर्भाग्य है, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। सर, ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, ये आई एम प्रोपोजिंग दिस टू बी partly met out of existing appropriation and partly through additional allocation. So ये economic stabilization fund कहाँ से आ रहा, यही है उसका जवाब। सर, फिर इस देश में कभी भी हमारे सैनिक के खिलाफ और सैनिक के विरोध में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से मोदी जी के सरकार में उनका साथ देने के काम करते हैं। 41,430.48 करोड़ डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू के लिए दे रहे हैं सर, ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में। ऑपोजिशन तो साथ देना है, डिफेंस के लिए पैसा दे रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं है उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि काम हो रहा है। सर, 35,290 crore is the payment for spectrum charges to Department of Telecommunications because of defense requirements. Defense का requirement meet करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं जो वापस consolidated fund में आएगा। और सर, ये एक मुख्य अंश है सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपके सामने आपके द्वारा बोलना चाहते हैं और हमारे सांसदगण को भी और सबको भी जानकारी होना चाहिए। 6,140 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम्स के लिए ECHS के लिए दे रहे हैं, जिससे कोई एक्स सर्विसमैन को हेल्थ सर्विसेज में कमी ना हो, पूरे उनका व्यवस्था ठीक होना चाहिए, इसीलिए 6,140 करोड़ ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम प्रावधान कर रहे हैं। फिर 37,886 करोड़ ट्रांसफर टू द स्टेट्स हो रहा है। ये 15th फिनांस कमीशन ग्रांट्स लोकल बॉडीज को लिए जो ग्रांट्स देना है वो दे रहे हैं। क्यों अभी दे रहे हैं, साल में नहीं दिया, पूरे साल छोड़ करके अब क्यों दे रहे हैं? इसीलिए अब दे रहे हैं क्योंकि स्टेट्स भी चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव खत्म कर लिया, बाकी सब कंडीशंस को मीट कर लिया, वो कंडीशंस मीट हो गया, इसीलिए अब इस अमाउंट को हम स्टेट्स को दे रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ ग्रांट्स भी स्टेट्स के लिए दे रहे हैं। फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी सर, मैं आपके सामने आपके द्वारा सभी सांसदगण को ये विषय बोलना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी कोई कमी नहीं होगा, पूरे के पूरे किसान के लिए प्रावधान है इस सप्लीमेंट्री डिमांड में। 19,230 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रावधान किया वो दे रहे, मगर उससे ऊपर एडिशनल भी दे रहे, किसान के लिए कोई कमी ना हो, वो फूड कॉर्पोरेशन को जा रहा है। और मुख्य है डिस्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइज्ड, हर एक स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के द्वारा उनके अपने स्टेट में किसान से जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीदते हैं किसान से, उनके लिए भी पैसा इस फर्टिलाइजर सब्सिडी के द्वारा जो फर्टिलाइजर के लिए जा रहा है वो जाएगा, मगर उससे ऊपर 23,641 करोड़ PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए जा रहा है।
गरीब कल्याण अन्न योजना 2 रास्ता से जा रहा है सर। वो पैसा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जा रहा है। फिर जैसे मैंने बताया, स्टेट्स उनके अपने तरफ से जो प्रोक्योरमेंट, जैसे मध्य प्रदेश राज्य गेहूं किसान से खरीदते हैं, उनके लिए भी इसके द्वारा पैसा जाएगा। सो गरीब कल्याण अन्न योजना में कोई दिक्कत ना हो, उनको पूरे मिलेगा। किसान के लिए कुछ कमी ना हो, उनसे प्रोक्योरमेंट भी होगा, दोनों के लिए पैसा इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में। अगर सर, मैं बार बार मेरे दुख व्यक्त करती हूँ, ये सब आम नागरिक के लिए जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम पैसा दे रहे हैं और अन्न या गेहूं दे रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, उसके लिए प्रावधान देने वाले सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। उनका नाराबाजी के ऊपर ही है इनका ध्यान। सर, फिर एमएसएमई के लिए, उनके लिए छोटे छोटे कारोबार के लिए पैसा देने के लिए सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनको हम 3000 करोड़ दे रहे इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। वन सेकेंड मैडम, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, ये जो सप्लीमेंट्री स्पीच वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, सारा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, सब टीवी के सामने बैठ के सुन रहे हैं। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि राज्य को 38,000 करोड़ का सैंक्शन किया हुआ है। अब ये जनता पूरे देश में सुनना चाहते हैं, आप क्या नारेबाजी लगा के वित्त मंत्री का आवाज़ सुनने नहीं दे रहे हैं? और फार्मर्स के लिए सब्सिडीज के लिए 18,000 करोड़, उसका भी उन्होंने डिस्कस किया है। और तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है, देश की जनता सुनना चाहते हैं। नहीं, आप कृपया आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिएगा प्लीज। प्लीज गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन टू लिसन टू आवर स्पीच। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट द एंटायर नेशन इज वेटिंग। नो, थैंक यू, प्लीज, नो मैडम। सर, लास्ट एक और विषय में बोलना चाहिए सर, जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई संबंध नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे, और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनके विरुद्ध। मनरेगा सर, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जी राम जी बिल जब हम लेके आए थे, उस समय 95,000 करोड़ का प्रावधान किया, वो बीई में है, 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट इधर फाइनेंस बिल वगैरह पास होने के बाद 1 अप्रैल से हर राज्य को जी राम जी बिल के तहत 95,000 करोड़ का प्रावधान है। मगर उसके अलावा पहले से पेंडिंग बिल्स के साथ बहुत सारे राज्य बैठे हैं और ये बात भी उठाते हैं कि वो क्या हो गया, आपके जी राम जी आ गए, मगर हमारे पुराने बिल का क्या होगा। 30,000 करोड़ वो पुराने बिल के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में, इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मार्च 31 तक जो मनरेगा लागू है उसके लिए 30,000 करोड़, नया 1 अप्रैल से जी राम जी आने वाले हैं, उसके लिए उस बजट में, नया बजट में 95,000 करोड़, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कमिटमेंट मनरेगा का भी और जी राम जी का भी पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। सर, अभी मैं जाती हूँ हर एक मेंबर का उनके अपने विषय को जवाब देने के लिए। सर,
पहले ही बताया सर, एनके प्रेमचंद्रन जी और बहुत सारे माननीय सदस्यगण इस विषय में बात किए। सर, इस विषय में बात करने के समय सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर बोले कि ये बार बार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेके आने में आपके पुअर बजटिंग दिखता है, ना कि रिस्पॉन्स दिखता है। आई वांट टू से ये एकदम फ्लॉड लॉजिक है सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड इज नॉट पुअर बजटिंग। मैं इसको आई वांट टू पोज क्वेश्चंस, ये प्रश्न के रूप में ही उनको जवाब देने के लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। क्या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आने में बजटिंग का प्रोसेस गलत है या बजट पुअर है, बजटिंग का प्रोसेस पुअर है, ऐसे कहने वाले से मैं प्रश्न के रूप में ही जवाब देना चाहती हूँ। Are the honorable members from the opposition suggesting that in times of unforeseen challenges should the government not create a fiscal buffer? ये इक्वलाइजेशन फंड जो मैंने बताया ओवर 50,000 करोड़ का, ऐसे परिस्थिति में क्या है इक्वलाइजेशन एक फंड इमरजेंसी के लिए क्रिएट करना सही नहीं है? सो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हम देना, इसका मतलब ये इमरजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं करें हम, यही है उनका मकसद है सर। जब जैसे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों ले आ रही हो, बजट में क्यों सोचा नहीं है? इमरजेंसी सिचुएशन जब डेवलप होता है उस समय हम ऐसे इक्वलाइजेशन फंड ले आना, इमरजेंसी के लिए ले आना गलत है क्या? मैं एनके प्रेमचंद्रन जी से पूछ रही हूँ। फिर ऐसे शॉक्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन और सडन सेक्टोरल क्राइसिस जो होता है उस समय हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं चाहिए क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं या वैसे ही पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड सर, are you suggesting then, जो members पूछ रहे हैं, are you suggesting that the government should not ensure adequate fertilizer supply for farmers? ये अभी supplementary demand for grants के द्वारा farmers के लिए fertilizer के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो देना नहीं चाहते हैं आप लोग? मैं रोकूं, किसान विरोधी प्रश्न है ये सब, किसान विरोधी। फिर सर, I am glad to say that the current fertilizer stocks for April 2026 stand at 163 lakh metric tons compared to 128.54 lakh metric tons. 26% higher दे रहे हैं इस बार fertilizer subsidy. This has been possible only because of the foresightness of the government. In addition, the additional allocation which is being given in the second supplementary demand for fertilizers is to ensure that the Rabi, अभी तुरंत आने वाले खरीफ है, उसके पास, उसके लिए खरीफ के लिए हमारे पास पूरा स्टॉक है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए हमारे पास पूरे हैं, मगर आने वाले रबी के लिए आपसे टेंडर नोटिस निकालना, नया इंपोर्ट करना, उन सब के लिए जो जब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री काम करती है उनके हाथ में पैसा रहना है, इसीलिए हम प्रावधान अभी ही कर रहे हैं। आने वाले रबी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएगा, दिसंबर 26, जनवरी 27 में आएगा, उसके लिए अभी ही प्रावधान कर रहे हैं। सर, मैंने मनरेगा का विषय बताया सर, वो अगर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं ले आते, वो 30,000 पेंडिंग बिल्स तो पेंडिंग ही रहेगा। वो ठीक है क्या आपको? सप्लीमेंट्री द्वारा 30,000 आप इस साल में जो पेंडिंग बिल्स है वो पेमेंट करके हम ले आ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं क्या? थोड़ा सोच समझ करके सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा
सरकार क्या करना चाहते हैं उसको समझ में लेने के बाद क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ना कि जस्ट लाइक दैट वन पॉलिटिकल कमेंट। थर्ड सर, 9,000 करोड़ स्टेट्स के लिए मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। वो स्टेट्स के लिए क्यों ट्रांसफर कर रही हूँ? क्योंकि आरई के बाद दिसंबर में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स लेने के बाद बहुत सारे स्टेट्स आए हैं, इलेक्शन हो गया लोकल बॉडीज का, हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस नया, वो कंडीशंस फुलफिल किया, पैसा दो ना दो, अगर देना है तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आवश्यक है, वो दे रही हूँ, स्टेट्स के लिए दे रही हूँ, मगर ना हम पूछेंगे प्रश्न। सो बिना पूछे बिना समझे बात करने वाले लीडर भी, ऑपोजिशन पार्टी भी और सदस्य भी, मुझे क्षमा करिए, थोड़ा पढ़ने के बाद प्रश्न पूछा करिए। ऐसे ही आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट health services for the ex-servicemen, sir. Even that payment is being made now. And in that, I'll take a minute to elaborate on what is actually being done to the ECHS. Sir, आपके द्वारा हमारे सदस्यगण भी उसमें इंफॉर्मेशन लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बोलना चाहिए एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट के लिए। चाहे ऑपोजिशन लीडर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मुझे मैं कुछ बोलने का नहीं है, मगर एक्स सर्विसमैन के विषय उठाने के समय ये संज्ञान में लें जो मैं बोलने वाले हूँ। सर, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस के लिए बड़ा सा खर्च होता है और इस देश के एक्स सर्विसमैन के लिए हम गर्व से वो सपोर्ट करते हैं, मना नहीं करते। और इन दिस सप्लीमेंट्री प्रोविजन has been made for cash supplementary of 6,141 crores for ECHS. This amount includes additionality of 2,863 crore agreed in the RE of 25-26. That itself is over the BE. 25-26 का बजट का BE से ज़्यादा दिसंबर में जो RE में हमने दिया, वो बजट से ज़्यादा ही, बजट BE के समय पर जो दिया उससे ज़्यादा RE में हमने दिया ECHS के लिए। और अभी further additionality of 3,458 crore over and above the RE. So RE से ज़्यादा अब सप्लीमेंट्री डिमांड में RE से ज़्यादा हम ECHS के लिए दे रहे हैं। इस बार 11,000 crores हम दे रहे हैं सर। टोटल एलोकेशन मैं ध्यान से हर एक मेंबर का सुनने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। टोटल allocation under ECHS for the FY 25-26, ये गौर से सुनिए। Total allocation for ECHS for the year 25-26, March 31st तक का साल के लिए, टोटल ECHS के लिए अभी 6,141 करोड़ के साथ 14,458 करोड़ हम दे रहे हैं ECHS के लिए, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस के लिए केंद्र सरकार दे रही है। ओके, आप लोग कृपया इधर से इधर आ जाइए, प्लीज कम दिस साइड। No, you cannot go towards the treasury benches. You know this. You should not go towards the treasury benches. Please come this side. No, not done. Sir, No, you I'm can't astonished, disrupt. sir. Please, sir. I'm astonished. There is a member